Let's start. Next unit of thermal properties of matter is heat transfer. Heat transfer. Heat transfer. Heat energy can be transferred from one place to another place by three methods: conduction, convection, radiation. Conduction mainly for solid. कंडक्शन मेनली फॉर सॉलिड. यहां पर कहीं आग जल रहा है, आपने यूज किया सॉलिड, ठीक है. किसी रॉड को आप होल्ड किए हुए हो, तो इस रॉड में हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है. इट इज कंडक्शन. सो कंडक्शन मेनली फॉर सॉलिड. लिक्विड और एयर में उसकी वैल्यू काफी कम, इसलिए हम लोग वहां पर काउंट नहीं करते हैं. कंडक्शन मेनली फॉर सॉलिड. कन्वेक्शन मेनली फॉर लिक्विड एंड गैसियस मीडियम. कन्वेक्शन मेनली फॉर लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, ठीक है. यहां पर ये फायर है, आपका हाथ ऊपर है, यहां से यहां जो हीट जा रहा है, ये क्या हो रहा है? कन्वेक्शन. ऐसा होता क्यों? आगे प्रो डिटेल्स में. एंड फॉर रेडिएशन no need of any medium. Radiation heat energy transfer, ठीक है. Even in vacuum its speed is maximum. Anyway, today's topic is conduction. आज का टॉपिक कंडक्शन. लिखिए heat energy can be transferred. Heat energy can be transferred. Heat energy can be transferred from one place to another place, from one place to another place by conduction, comma convection and radiation. Heat energy can be transferred from one place to another place by conduction, by convection and by radiation. And today's topic is conduction. तो अब आगे हेडिंग डालो कंडक्शन. आज पूरा कंडक्शन ही चलेगा हम लोग का. कंडक्शन. कंडक्शन, ठीक है. आज का टॉपिक कंडक्शन. अब देखो, अपने सिलेबस में वन डायमेंशनल है, सिर्फ 1D हीट ट्रांसफर है. रॉड के लिए प्लेट में ट्रांसफर होगा 2D हीट फ्लो, स्फीयर में फ्लो होगा 3D फ्लो. अपने सिलेबस में सिर्फ 1D फ्लो है, हीट फ्लोइंग अलोंग द रॉड. ये रहा रॉड, दिस एंड हाई टेम्परेचर TH, another end low temperature cold temperature TC. L is the length of rod, L is the length of rod and A its cross section area. L is the length of rod and A its cross section area. A its cross section area. Heat energy transfer from high temperature to low temperature. कंडक्शन पूरा बस एक ही फॉर्मूले पर है, पूरा कंडक्शन सिर्फ एक फॉर्मूले पर है. लिखो आप, लिखिए when two end of rod at different temperature, two end of rod at different temperature, then heat energy transferred from hot end
from hot end to cold end, hot end to cold end, depends upon the cross section area of a rod, depends upon the cross section area of rod A, cross section area of rod A, its length L, and their temperature difference, and their temperature difference. डायग्राम ये बनाओ, रॉड लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, one end at high temperature TH, another end at low temperature TC. बनाओ डायग्राम. L is the length of rod, A its cross section area, TH high temperature end, and TC cold temperature end. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए ना. Rate of heat transfer for a rod, rate of heat transfer for a rod depends upon the its cross section area A, depends upon the its cross section area A, length L, and temperature difference, ये डायग्राम proportional to cross section area, proportional to temperature difference, inversely proportional to its length, rate of heat transfer. इस तीन फैक्टर के ऊपर Q is the heat energy, Q heat energy in time T, so Q by T is the rate of heat transfer, Q by T is rate of heat transfer, Q by T is rate of heat transfer. डायग्राम ये पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर आज का, और यहां पर और ऐड कर लेना दिस फॉर्मूला इन स्टेडी स्टेट. आगे बताएंगे क्या होता है ये. तो अपने सिलेबस में 1D हीट फ्लो है, बस ओनली हीट फ्लो, ओनली अलोंग द लेंथ. 2D क्या होता, ये पूरे बोर्ड में यहां गर्म करते, उधर भी हीट जाता, उधर भी गर्म होता है, इधर भी गर्म होता है. 2D किसी स्फीयर के सेंटर पर गर्म करो, तो इस स्फीयर के सेंटर पर गर्म करो, हीट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. 3D in all direction, 3D heat flow, only in two direction, 2D heat flow. along the rod it is 1D heat flow. अपने सिलेबस में कुछ एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा मैं 2D का, बट अपने सिलेबस में सिर्फ 1D heat flow है. Rate of heat transfer proportional to area, proportional to temperature difference, inversely proportional to length. लिख लिया आपने यहां तक? यस सर. इस तीनों को कंबाइन करो,
इस तीनों को कंबाइन करो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q by T proportional to A temperature difference divided by length. Rate of heat transfer proportional to area proportional to temperature difference. Temperature difference जितना ज्यादा होगा heat flow उतना ही fast होगा. Inversely proportional to length. You combine all the three, ये बन गया. Remove proportional constant, proportional हटाओ तो आ गया है constant. Finally, Q by T is equal to K A TH minus TC divided by L. बस ये आपको याद रखना है. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट. देख लो. लास्ट टू लास्ट ईयर आया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन. के की यूनिट या डायमेंशन था, कुछ पूछा गया था. के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लिख लो. के इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. आइए देखें इसका डायमेंशन. Q heat energy for any energy dimension ml square T minus 2 divided by time T. K area meter square length square. Temperature difference for temperature Kelvin symbol K. अच्छा इसके K को चलो यहाँ कंफ्यूज मत कर देना, ये केल्विन लिख दिया, ठीक है. डिवाइड बाय लेंथ मीटर L. अब देखो ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया. इसको ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर ले आइएगा तो M L T minus 3 Kelvin minus 1. It is the dimension of coefficient of thermal conductivity. It is the dimension of coefficient of thermal conductivity. Thermal conductivity. Thermal conductivity. It is the dimension of thermal conductivity. तो ये सब यूनिट डायमेंशन में करता है. यूनिट डायमेंशन कभी एंड नहीं होता है, हर चैप्टर में नया टर्म मिलेगा तो उसका यूनिट और डायमेंशन. ऊपर चलो. यूनिट एनर्जी अपॉन टाइम पावर वॉट. इसके यूनिट चेक करो. वॉट एनर्जी अपॉन टाइम पावर, यूनिट ऑफ पावर वॉट. मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल, मीटर नीचे, वॉट पर मीटर पर कैलोरी. इट्स यूनिट. एनर्जी अपॉन टाइम पावर, यूनिट ऑफ पावर वॉट, मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर पर केल्विन. ये हो गई इसकी यूनिट. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिख लिया आपने. डन सर. अब देखो यहां तक हो गया. अब इसके बाद थोड़ा देखो. यहां देखो सिंपल पहले फॉर्मूला. ये
एरिया डबल कर दिए तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डबल, 2 रॉड लगा दिए, हीट यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया डबल। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेंथ आपने डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिए तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया हाफ। बट फाइनली आपको रटना है फार्मूला। अब यहां पर देखो थर्मल कंडक्टिविटीज की वैल्यू, यूनिट वही वाट पर मीटर पर केल्विन। अब खुद देखो, फॉर सॉलिड एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर लेड जो भी है, ये सब वैल्यू दिख रहा है, रटना नहीं वहां दिया रहेगा, ठीक है। सो के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज हो रहा है तो देखो वहां के की वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। और देखो फॉर सॉलिड, ऊपर सब सॉलिड था, नीचे के देखो सॉलिड में, अब ये जो सॉलिड दिख रहा है ये क्या है इंसुलेटर है। अब देखो ब्रिक कंक्रीट जो दिख रहा है इसकी वैल्यू काफी कम। ऊपर देखो फॉर कंडक्टर, ऑल आर कंडक्टर, ठीक है, ऑल आर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर इट्स वैल्यू वेरी हाई। पढ़ते हैं 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में, ठीक है। टाइप ऑफ सॉलिड कोई बताओगे? टाइप ऑफ, चलो मैं बताता हूं, आयोनिक सॉलिड, ठीक है, जिसमें आयंस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जो नमक खाते हो वो है आयोनिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो एग्जांपल देख रहे हो ऑल आर मेटालिक सॉलिड। तो सॉलिड भी तो बहुत टाइप के हैं, वो सॉलिड जो आयन से बने हुए हैं आयोनिक सॉलिड, ठीक है, वो सॉलिड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ऑल आर आयोनिक सॉलिड, सॉरी ऑल आर कंडक्टर सॉलिड, ठीक है। अब देखो इसके लिए के की वैल्यू, नीचे भी सॉलिड है, बट अब देखो ये ब्रिक ये सब जो दिख रहा है ये सब, या कंक्रीट हो गया ये सब, ठीक है, ये सब कहलाता है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो सॉलिड आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयोनिक सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, तो बहुत सारे टाइप के सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में भी किसके लिए मैक्सिमम? कंडक्टर, बिकॉज कंडक्टर हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी यहां से वहां तक कैरी करके कौन ले जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए के की वैल्यू मैक्सिमम फॉर मेटालिक सॉलिड। नॉन मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ये जो सॉलिड दिख रहा है सब का देखो वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में काफी कम है, बिकॉज मेटालिक सॉलिड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसफर कर रहा है। और देखें इन केस ऑफ गैसियस कंडीशन, ठीक है, अब देखो इस गैसी कंडीशन में यहां भी के की वैल्यू काफी कम है। अच्छा के की थोड़ा, ठीक है, यहां भी के की वैल्यू काफी कम है, तो गैस के लिए, ठीक है। सो फाइनली जो भी है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम फॉर सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में भी किसके लिए सॉलिड? मेटालिक सॉलिड मैक्सिमम, कोवैलेंट सॉलिड उससे कम, ठीक है। देखो यहां पर और के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, K depends upon the nature of material and it is maximum for, and it is maximum for metallic solid. It is maximum for metallic solid. For covalent solid, its value is less. For covalent solid, its value is less. And for gas, its value is minimum. For gas, its value is minimum. गैस के लिए इसकी वैल्यू और भी कम, ठीक है। चलो
So K depends upon the nature of material. Its value is maximum for conducting solid. अब फिर वापस सुनो, वेरिएबल स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। किसी रॉड को आपने रखा ये हाई टेम्परेचर, ये रखा लो टेम्परेचर, ठीक है। कुछ वैसा ही समझो यार, किसी पाइप में पानी ट्रांसफर करना है, आपने पाइप के एक एंड पर पानी दिया, दूसरे एंड से उतना पानी बाहर नहीं निकला, ठीक है। रेट ऑफ इनपुट रेट ऑफ आउटपुट नॉट इक्वल, मींस जितना पानी दिया उतना बाहर नहीं निकला, तो पानी गया कहां? पाइप में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो गया। कुछ वैसा ही, when rate of heat output not equal to rate of heat input, this state is known as variable state। तो जो तुमने हीट दिया उतना बाहर निकला नहीं, तो गया कहां? It is used to increase its temperature, जो पढ़ चुके हैं कैलोरीमेट्री में। तो इनिशियली रेट ऑफ हीट आउटपुट इज लेस देन रेट ऑफ हीट इनपुट बिकॉज ऑफ remaining heat energy is used to increase the temperature of solid known as variable state। नीचे नोट करो, देखिए, इनिशियली रेट ऑफ हीट आउटपुट is less than rate of heat output is less than rate of heat input। Initially rate of heat output is less than rate of heat input because part of heat energy is used to increase the temperature of rod। Rod, and it is known as variable state, and in case of variable state, temperature at every point of rod increases with time। तो रॉड के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो समझ में आ गया ये कौन सा स्टेट है? वेरिएबल स्टेट। तो रेट ऑफ इनपुट रेट ऑफ आउटपुट के इक्वल नहीं है, ये हो गया वेरिएबल स्टेट। इसके ठीक अपोजिट स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेडी स्टेट, rate of heat output is equal to rate of heat input and in this condition temperature at a fixed point not changes with time। Temperature at a fixed point not changes with time। इस पर कभी जेई मेन में ग्राफ आया था, समझो। ये एक रॉड है, अभी रूम टेम्परेचर पर है, तो
रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर, आजकल टेम्परेचर सपोज अप्रोक्स 30 के आसपास होगा, तो इस रॉड का हर पॉइंट का टेम्परेचर 30 है। इस रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर 30 है। जस्ट विजुलाइज करो कि तुमने यहां लगा दिया थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए तुमने यहां लगा दिया थर्मोमीटर। तो आपने देखा इस दोनों थर्मोमीटर का टेम्परेचर 30 है, दोनों का टेम्परेचर 30, बिकॉज रॉड एट रूम टेम्परेचर। तुमने अचानक से एक एंड को रख दिया स्टीम में, अब एक एंड को रख दिया सपोज स्टीम के अंदर और दूसरे एंड को रख दिया आइस के अंदर। अब बताओ, स्टार्टिंग में रॉड का हर पॉइंट 30 पर था, अचानक से आइस में, तो इधर का टेम्परेचर का, इधर का एंड का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ, इधर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो आपने देखा दोनों थर्मोमीटर में हो गया स्टार्ट फ्लक्चुएशन। तो जब तक फ्लक्चुएट कर रहा है, जब तक थर्मोमीटर का रीडिंग बदल रहा है, मींस वेरिएबल स्टेट। एक समय आया कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और, मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, कुछ तुम्हारे पॉकेट में भी होंगे। तो मेरे पॉकेट में भी हम पढ़ा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मेरे पॉकेट में भी कांस्टेंट है और तुम्हारे पॉकेट में भी कांस्टेंट है। तुम भी बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं जाने रहे हो, तो जितने तुम्हारे पैकेट में भी पैसे हैं वो कांस्टेंट है, मेरे पैकेट में जितने हैं कांस्टेंट है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा कांस्टेंट तुम्हारे कांस्टेंट के इक्वल हो। तो कांस्टेंट, मैं भी कांस्टेंट, तुम भी कांस्टेंट, तो इट मींस ये नहीं है कि हम दोनों इक्वल हैं। इट मींस आपका भी कांस्टेंट, आपका भी नहीं बदल रहा है और मेरा भी। यह भी कुछ ऐसा ही, टेम्परेचर ऑफ दिस थर्मोमीटर बिकम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बट दिस थर्मोमीटर इज क्लोज टू हाई टेम्परेचर। तो इसका इसका हाई टेम्परेचर, तो ये कुछ हाई वैल्यू, ये इसकी कम वैल्यू। तो लोग गलती क्या करते हैं, सर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर सेम, सेम एंड कांस्टेंट डिफरेंट थिंग, सेम एंड कांस्टेंट डिफरेंट थिंग। मेरे और तुम्हारे पास पैसे सेम है और मेरे और तुम्हारे पास पैसे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एंड सेम आर डिफरेंट, तो इसको आप गलत मत करना। अब देखो, दिस एंड एट हाई टेम्परेचर, दिस एंड एट लो टेम्परेचर। जे मैन में इसका ग्राफ आया था, तो इसका ग्राफ अगर बना दूं, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो इधर से उधर जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा, ये रहा। तो दोनों थर्मोमीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है बट सेम नहीं है। ठीक है, तुम सोचो अगर दोनों का सेम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हो ही नहीं तो हीट ही फ्लो नहीं होगा, तो हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नॉट सेम। तो ये रहा ग्राफ किसके बीच, टेम्परेचर, इधर का हाई टेम्परेचर उधर का लो टेम्परेचर, बना लो। रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर कांस्टेंट नॉट सेम। याद रखना, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट along its length, not same. Done, sir. लिखिए ना, in steady state along the length temperature constant not same.
In steady state, temperature along the length constant, not same. Not same. ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। वापस फिर से, Q बाई टी के ए टी एच माइनस टी एल बाय एल, ये जो वैल्यू है टी एच माइनस टी एल बाय एल, ये कंबाइंड को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। नीचे नोट करना, टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया रहे तो समझना वो एल से ऑलरेडी डिवाइडेड है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस लेंथ से डिवाइड। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो डिवाइडेड बाय लेंथ उस टर्म के लिए यूज करते हैं ग्रेडियंट, टी एच माइनस टी एल बाय एल। तो जब क्वेश्चन में टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया रहे तो अंडरस्टूड उसमें लेंथ इंक्लूडेड है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर टी एच माइनस टी सी होना चाहिए ना? ठीक है, मैंने कभी कभी गलती कर दिया, लो टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है कोई दिक्कत। चलो, TH minus TC by L, temperature difference upon length is known as temperature gradient. Temperature gradient, ठीक है। तो ये दिया रहे, पूरा ये दिया हुआ है, और समझो। और अगर लिखो कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिसिटी, कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिसिटी, electric current flow due to potential difference and heat flow due to temperature difference। लिखो comparison with electricity, लिखो electric current flow, electric current flow due to potential difference, electric current flow due to potential difference and heat current, Q by T को heat current भी बोलते हैं, and heat current flow due to temperature difference, due to temperature difference। तो देखो इससे हम क्या एक कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां देखो क्या कर रहे हैं, Q by T एनर्जी फ्लो अपॉन टाइम, इट इज नोन एज हीट करंट, हीट करंट भी बोलते हैं इसको। उधर के ए टी एच माइनस टी सी बाय एल। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इस पूरे टर्म को नीचे ले आओ, Q बाई टी हीट करंट, Q बाई टी हीट करंट, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस TD, टेम्परेचर डिफरेंस, इसको नीचे ले आओ L बाय के। अब इससे कंपेयर, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट करंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो नीचे कौन है रेजिस्टेंस, के ए को नीचे ले आया, एल बाय के ए, ये भी कहलाता है रेजिस्टेंस, बट इट इज थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज थर्मल रेजिस्टेंस। L by Ka is known as thermal resistance, thermal resistance दिया था अंडरस्टूड, वो L by Ka दिया हुआ है, L by Ka is thermal resistance।
L by Ka is a thermal resistance. L by Ka is thermal resistance. Electric current due to potential difference, heat current due to temperature difference. Resistance L by K thermal resistance. लिख लिया? यस सर। अब इस L by K का हम यूज क्या करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, लिखो आगे। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहला देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन सीरीज। चलो ध्यान दो, दो रॉड को लगा दिया आपने, दो अलग अलग मटेरियल का रॉड था, सपोज एक कॉपर का था, दूसरा स्टील का था, आपने लगा दिया उसको सीरीज में। कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का, इन सीरीज क्या सेम होगा, हीट करंट सेम होगा। क्यों? तो रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। अब ये दोनों रॉड किस में है, सीरीज में है। ठीक है, ये है एक K1 का और ये K2 का, लेंथ दोनों का सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, एक K1 एक K2, निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। यूज फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज R इक्वल टू R1 प्लस R2, सीरीज कनेक्शन। और R का फॉर्मूला भी पढ़े थे, L by Ka। सो फॉर फर्स्ट रॉड L by K1A, सेकेंड रॉड L by K2A, और ये क्या था, R इक्विवेलेंट। दोनों रॉड को मिला दिए तो अब लेंथ 2L हो गया। तो इधर देखोगे इक्विवेलेंट 2L डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट, डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट। अब सुनो, इस दो पेन को LL AA जोड़ दिए सीरीज में, लेंथ डबल बट एरिया सेम। इस रॉड को ऐड किए पैरेलल में, लेंथ नहीं बदला बट एरिया क्या हो गया, डबल। सो इन दिस कंडीशन एरिया रिमेन सेम, एरिया नहीं बदला। इस पेन को सीरीज में क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम। L by A कैंसल आउट, L by K A कैंसल आउट। इधर सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो K1 प्लस K2, नीचे K1 K2, और इधर 2 by K इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, K इक्विवेलेंट इन सीरीज कनेक्शन 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। एक शॉर्ट ट्रिक जो इस चैप्टर में भी, कैपेसिटर पढ़ोगे वहां भी शॉर्ट ट्रिक, और बहुत जगह शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। वही ऑप्शन सही होगा जिसमें K1 K2 K3 K4 को 1 रखने पर 1 आ जाए। वेरीफाई करो, 2 into 1 into 1, ऊपर 2 नीचे 1 plus 1 2, 2 by 2 कट गया 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब दिखाऊंगा मैं, बट अभी मेथड से सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन सीरीज, सेम रिजल्ट, सेम टू सेम रिजल्ट जब लोगे कैपेसिटर, वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सेम रिजल्ट आता है। जब आप पढ़ोगे कैपेसिटर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेम रिजल्ट, उतार लो। और इसको उतारने के बाद खुद से ट्राई करो पैरेलल कनेक्शन। इसको उतारने के बाद खुद से ट्राई करो पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन। लिख लिया ये? यस सर। Yes, sir, written. नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, टेम्परेचर डिफरेंस सेम। पैरेलल, K1 K2 K1 K2 high temperature, cold temperature. In parallel, temperature difference है। निकालो K equivalent। So K1 plus K2 upon 2. यस, सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल याद कीजिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Use formula R L by KA, L by K1A, R2 L by K2A। L नहीं बदला, इस पेन को मैंने साइड बाय साइड, इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, अभी भी लेंथ L है, बट एरिया डबल। लेंथ अभी भी L है, बट एरिया डबल। 2A, A by L, A by L, A by L कैंसल। So K equivalent K1 plus K2 by 2, K1 plus K2 by 2, K1 plus K2 by 2। एक और ट्राई करो, ये तो 2 हो गया सिंपल है ना। एक कभी कभी क्या बहुत एग्जाम में आ चुका है ये। सुनो, निकालो अगला। सिलेंडर, इसकी कंडक्टिविटी K1, ये सिलेंडर है जिसकी कंडक्टिविटी K1 है, और इसमें एक और सिलेंडर चिपका हुआ है, ऊपर से भी है, और ऊपर वाले की कंडक्टिविटी K2 है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। अंदर का मटेरियल K1 का, बाहर का जो दिख रहा है मटेरियल वो K2 का है। ये जो बाहर दिख रहा है कवर्ड किया हुआ है वो K2 का है। अंदर वाले की रेडियस R है और बाहर वाले की रेडियस 2R है। इसकी रेडियस R और बाहर वाले की रेडियस यहां से यहां तक ये 2R दिया हुआ है। और इधर हाई टेम्परेचर, उधर कोल्ड टेम्परेचर पूछा गया था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब अंदर का भी टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TC, बाहर का भी टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TC, मीन्स यहां भी दोनों किस में है, पैरेलल में है। सॉल्व करके बताओ इसकी K इक्विवेलेंट, कोशिश करो। फाइंड आउट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, कोशिश कीजिए। अंदर का मटेरियल K1, बाहर का मटेरियल K2, कोशिश करो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी।
आप भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व कर रहे हैं। इन पैरेलल 1 by equivalent resistance 1 by R1 plus 1 by R2, दोनों की लंबाई सेम है, L दोनों में आएगा, केवल इधर भी L है, K2 बस थोड़ा एरिया को सोचो, एरिया बस तुम्हारे सोचने को छोड़ दिए, L ऊपर आएगा K इक्विवेलेंट, बस तुम यहाँ एरिया सोच लो, एरिया सोच लो, यहाँ एरिया सोच लो और काट दो, आंसर आ जाएगा। एरिया टर्म तुम्हारे लिए छोड़ दिए, रखो वैल्यू और आंसर बताओ। कोई तो बताओ। सर K equilibrium is equals to K1 plus 2K2. आपको मिलते हैं -1, आपको मिलते हैं -1। एरिया तो रखना है तुम्हारे लिए, बस एरिया ही बच गया है आपके लिए, बस ये। हाँ बोलो। नहीं सर, बोलो, कुछ नहीं। अरे बोलो बोलो, तुम शर्माओ नहीं। कुछ तो आया था, पूर्वा रुक गई बोलते बोलते। 2K2/3 -1 -1 और कोई ट्राई करो। एरिया तो ही रखना है। और मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, जो भी तुम्हारा आंसर आया K1 K2 को 1 रखना, तो K इक्वलेंट 1 आ जाए तो समझना सही है, नहीं है समझना गलत है। सर K1 plus 2K2 divided by 3. 1 तो आ गया लेकिन गलत है, 1 तो आ गया लेकिन गलत है। और किसी को बोलना है? एरिया निकालने में इतनी गलती कर रहे हो, एरिया निकालने में इतनी सारी गलती। कविता डांगी कुछ तो बोलो, डॉली आप भी कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए। सर K1 plus 3K2 by। हाँ ये सही आंसर था, ये सही आंसर था। समझो समझो समझो, ध्यान दो। मैं तुमसे बोलूं, ये एक सर्कल है येलो कलर का, जिसकी रेडियस R है, और इसके आगे पढ़ते थे शायद 8th या 10th में मेंस्ट्रुएशन में, ये रेड वाला है, यहां से यहाँ 2R है। तो बताओ येलो वाले का एरिया और रेड वाले का एरिया। तो येलो वाले का एरिया तो सब बड़ा सिंपल है, πr²। इस रेड पार्ट का एरिया बताओ। सर पूरे एरिया निकाल कर येलो वाले का माइनस कर दो, तो पूरा एरिया कितना होगा, π2r का होल स्क्वायर।
तो पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ये निकला पूरा एरिया। मुझे चाहिए सिर्फ ये रेड वाले का एरिया, क्योंकि अंदर वाला ये था K1 और ये था K2, तो K2 का क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ ये है, ये नहीं है। तो पूरे एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस करो, तो अंदर वाले पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर और बाहर वाले पार्ट का 4 - 1 3। ये गलती हो रहा था तुमसे। जो अंदर का रॉड था उसका एरिया पाई आर स्क्वायर और बाहर वाले का एरिया पूरे का निकाल कर अंदर वाले को माइनस करना था। तो K2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और K1 का ये है। अब सही करो, अब आ जाएगा। और टोटल एरिया दोनों को प्लस कर दो तो टोटल एरिया 4 हो गया। अब करो, सबका आंसर आ जाएगा। तो K1 का क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा, K2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा और K इक्विवेलेंट दोनों का सम टोटल एरिया। अब करो, अब आ जाएगा। अंदर वाले का देखो, सिर्फ इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया तो ये येलो का इतने का एरिया तो अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा, सिखा चुके हैं। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बाहर का, ये अंदर का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब सब में ये कट गया और आंसर आ गया। और जो शॉर्ट ट्रिक को सेटिस्फाइड भी कर रहा है और आंसर भी आ गया, K1 + 3K2/4। ये रहा आंसर। ये रहा इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। देवांश, समझ में आ गया? यस सर। K1 + 3K2/4। ये वाली टाइम स्लॉट जो क्लास चल रहा है अभी 4 महीने में, मैक्सिमम 4 मंथ में 11th का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 4 मंथ। चलिए आंसर K1 + 3K2/4। तो कंडक्शन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निकालो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? और क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर एट जंक्शन। देखो आगे नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरफेस टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरफेस टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरफेस टेम्परेचर। समझो क्या आता है। एक रॉड ये है, ये रॉड K का है, इसको जोड़ दिए दूसरे रॉड के साथ, दूसरा रॉड की लंबाई थोड़ा ज्यादा है और ये है 2K वाला, इसकी लेंथ भी 12 है। पूछा जाता है इस एंड का टेम्परेचर सपोज 80 है और इस एंड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का जो जंक्शन है इसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट का मुझे टेम्परेचर चाहिए। यह यूज करते हैं वही स्टेडी स्टेट, रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। तो स्टार्ट हो जाए। इससे हीट गया और इससे हीट बाहर निकला। मान लिया इसका हीट करंट I2 था, इसका हीट करंट I1। तो जब भी क्वेश्चन इंटरफेस टेम्परेचर आए तो यूज एट जंक्शन रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। लिख लो, देखिए एट जंक्शन हीट करंट इनपुट, एट जंक्शन हीट करंट इनपुट इज इक्वल टू हीट करंट आउटपुट। एट जंक्शन हीट करंट इनपुट इज इक्वल टू हीट करंट आउटपुट। सो I1 इक्वल टू I2। हीट करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? K एरिया TH - TC,
80 माइनस टी डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ, इसका लेंथ मान लो एल दिया हुआ था। उधर चलो, के नहीं 2k का है, 2k एरिया, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो तो ये होगा हाई टेम्परेचर, T माइनस लो टेम्परेचर 10 डिवाइड बाय लेंथ 2L है। बस इसको अपन अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया जाए, के ए बाय एल, ये 2 कट गया, के ए बाय एल कट गया, इधर क्या रहा 80 माइनस टी, उधर क्या रहा T माइनस 10, 10 इधर ले आओ तो 90 और इस T को उधर ले जाओ 2T। So temperature at the junction 45 डिग्री सेल्सियस। उतार लो। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, उतार लीजिए। तो कंडक्शन में या तो डायरेक्ट फॉर्मलेस क्वेश्चन, या के इक्विवेलेंट, या यहां से टेम्परेचर एट जंक्शन। देख लिया? डन सर। लिखो अगला क्वेश्चन। फॉर आइडेंटिकल रॉड, for identical rod find out temperature at junction। for identical rod, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। for identical rod, तीनों रॉड आइडेंटिकल है। for identical rod find out temperature at junction, यहां दिया था 90 डिग्री सेल्सियस, यहां भी थी 90 और यहां था 0 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया था इस पॉइंट का टेम्परेचर बताओ। तीनों रॉड आइडेंटिकल, लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, के भी सेम, सब कुछ है। कोशिश करो। फॉर 3 आइडेंटिकल रॉड, आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल, सब कुछ सेम है। ये 3 रॉड है, निकालना है टेम्परेचर एट जंक्शन। कोशिश करो, कोशिश करो टेम्परेचर एट जंक्शन। सेम अप्रोच, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोशिश करो, आ जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5050। 5050, एक ऑप्शन 50 आया। और किसी को बोलना है? चलो मैं सॉल्व करूं। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट इधर से भी आएगा,
हीट इधर से भी आएगा और उधर से निकलेगा। इधर से आ गया, मान लिया I1 है, इधर से मान लिया I2 है, और बाहर निकला I3 है। सर 60। आई चेक करें तो जंक्शन पर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर निकल रहा है। तो टोटल हीट करंट इनपुट इक्वल टू टोटल हीट करंट आउटपुट। तो इनपुट कहां से है? I1 प्लस I2 दोनों ही इनपुट है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो टेम्परेचर। तो इनपुट इधर से भी है, इनपुट इधर से भी है, और वहां से आउटपुट। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 रखें वैल्यू। हीट करंट फार्मूला KA, सब कुछ सेम है। KA टेम्परेचर डिफरेंस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय L फॉर फर्स्ट रॉड। I2 again KA 90 माइनस थीटा बाय L। आउटपुट यहां से बाहर निकल रहा है KA थीटा माइनस 0 बाय L। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हीट करंट इनपुट, दो रॉड से इनपुट था और एक से आउटपुट था, सभी में KA बाय L कट गया। 90 90 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, RHS में से थीटा बचा, उधर ले जाओ। 180 इक्वल टू 3 थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। अपूर्वा कहां गलती किया था? क्यों खुशी, कोई रॉकेट साइंस है इसमें? अरे कुछ तो बोलो। एक ही कंसेप्ट है, रेट ऑफ हीट इनपुट इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। दो रॉड से इनपुट मिल रहा था, एक रॉड से आउटपुट निकल रहा था, मैंने इनपुट को आउटपुट के इक्वल कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। वैसे किसी का 60 आया था, किसका था 60? सर मेरा। आंसर 60, आंसर 60। अपूर्वा बोलो तो, गलती क्या की थी तो मुझे जानना जरूरी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। इक्वेशन सही लिखा था तुमने? यस सर। चलो ठीक है, आंसर 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल कंडक्शन में, रियल लाइफ एग्जांपल है ना, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। कंडक्शन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जिसका आंसर तुम यहां ढूंढ सकते हो। कुछ हम लोग जो कुकिंग पॉट होते हैं, खाना बनाने के बर्तन होते हैं, देखे हुए नीचे से होता है बना हुआ एल्यूमिनियम का या स्टील का, और नीचे कॉपर का पेंट लगा होता है। देखा है आपने? किचन कभी गए हो किचन में? आजकल जो बर्तन आते हैं ना, बर्तन पूरा स्टिक है और नीचे जो बॉटम पर होता है ना, कुछ अलग मेटल का वो चिपका हो दिखता है। अरे देखा है कि मैं दिखाऊं अपने किचन से लाकर? यस सर, देखा है ना? तो वो ऐसा क्यों लगता है ना? जो नॉर्मल जाओ किचन में, वो नीचे कुछ और मटेरियल होता है, बाकी पूरा स्टील होता है। या हम लोग के घर में मैक्सिमम बर्तन क्या होते हैं, या तो स्टील होते हैं या तो एल्युमिनियम होते हैं, बट नीचे देखे हुए कुछ और चिपका होता है। वो कुछ और चिपकाने का पर्पस क्या होता है? आंसर यहां से ढूंढो, आंसर यहां से ढूंढो, आंसर यहां से ढूंढो। हाई क्या ढूंढे सर? कंडक्टिविटी। किसका? कॉपर का। ये कॉपर का। नॉर्मली हम लोग के बर्तन क्या होते हैं? एल्युमिनियम के। यहाँ ढूंढो 205 कंडक्टिविटी। और किसके होते हैं? स्टील के 50। स्टील तो बहुत कम है यार, तो एल्युमिनियम में खाना जल्दी बनेगा। ध्यान रखना, एल्युमिनियम वाले बर्तन में खाना
ऑलमोस्ट 1/4 में वहां जल्दी बनेगा, क्योंकि स्टील का के कम है और एल्युमिनियम का के ज्यादा है। और कंडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए उसके बॉटम में कॉपर चिपका देते हैं। तो बॉटम बना होता है कॉपर का, पूरी बॉडी होता है स्टील या एल्युमिनियम का, और बॉटम कॉपर का, बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी हाई। ये मत समझना कि बर्तन बनाने वाले ने उसके खराब हो गया तो नीचे कुछ चिपका दिया, वो नहीं है। नीचे कॉपर का, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, के ज्यादा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो नीचे से ऊपर हीट जो ट्रांसफर उसका जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी खाना बनेगा। और क्या है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन थियोरेटिकल, अगला थियोरेटिकल। ठीक है, जो हम लोग का रोटी बनाने का जो डिवाइस होता है किचन में, ठीक है, तो उसको हैंडल लकड़ी का बना हुआ क्यों होता है? पूरा होता है लोहे का होता है, और पकड़ने वाला लकड़ी का क्यों? वो सर वो अपन को गरम ना लगे। सर बैड हाँ तो कंडक्टर ऐसा, हो तो। हाँ तो ऐसा क्यों? तो ये ढूंढो, लकड़ी का देखो 0.12, अरे लकड़ी की वैल्यू देखो 0.12 कंडक्टिविटी, और जो स्टील होता है जो हम लोग जो जिस पर रोटी बनाते हैं वो 50 का होता है। तो इस जो पूरा बर्तन है वो 50 का है, और जो लकड़ी है वो 0.12। तो आप लकड़ी का पर तो ज्यादा गर्म ना लगे, तो गर्म क्यों नहीं लगे? क्योंकि लकड़ी में हीट ऑफ ट्रांसफर कम होगा, इसलिए इसका जो हैंडल है पकड़ने वाला वो बना होता है लकड़ी का। और सुनो, ठंड के दिन में काफी तेज ठंड थे, तुम गए अपने बगीचे में, बाहर पार्क में गए, 2 चेयर था, एक स्टील का चेयर था और एक लकड़ी का चेयर था, तुम किस चेयर पर बैठना पसंद करोगे? सर लकड़ी। लकड़ी का। लकड़ी पे। क्यों? तो लकड़ी पर तो थोड़ा, ये बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं, क्या लकड़ी का टेम्परेचर कम और लोहे, लकड़ी का टेम्परेचर ज्यादा और लोहे का टेम्परेचर कम है, क्या ये सही है? नहीं। पार्क में जितने ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान लो, जितना टेम्परेचर लकड़ी का है पार्क में, अगर पार्क का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या 5 है, तो पार्क में जितने ऑब्जेक्ट है सबका टेम्परेचर 5 है। बट जब आप लकड़ी पर बैठे है तो उसका भी 5, लेकिन अल्टीमेटली हीट ऑफ ट्रांसफर डिपेंड करता है, उसका है उससे उसको मतलब नहीं है। लकड़ी का के काफी कम है, तो आपके बॉडी से लकड़ी हीट कम खींच पाएगा, क्योंकि उसका के कम है, और स्टील का के 40 था। तो जो चीज अधिक ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब वो आपके बॉडी से हीट अधिक विड्रॉ कर रहा है। क्यों? तो उसका के क्या है? ज्यादा है। के क्या है? ज्यादा है। अगला आंसर यहां जोड़ना, अगला यहां जोड़ना, ठीक है। आप जब ठंड के दिन में या आपके जो रजाई यूज करते हो, ठीक है, नया रजाई लाते हो जब, तो वो अधिक गर्मी फील करता है। जब 2-4 साल यूज करने के बाद वो रजाई गर्मी थोड़ा कम करता है, लोग बोलते हैं रजाई थोड़ा कम गर्म कर रहा है। ऐसा होता क्या है? 2-4 साल के बाद रजाई थोड़ा कम गर्मी देता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट। बिकॉज रजाई पुराना हो। हाँ तो पुराना हो गया तो क्या, उसके हाथ पैर कमजोर हो गए? सही है, रजाई पुराना हो गया, पुराना होने में उसमें ऐसा क्या चेंज आया? रजाई पुराना हो गया, एग्री, पुराना हो गया, उससे चेंज क्या आया? और सुनो, और दे रहे हैं, ठंड में 2 चॉइस तुम्हारे पास है, 2 अलग अलग रजाई दिया जाए तुमको, 2 पतले पतले रजाई, ठीक है, और एक मोटा रजाई दिया जाए। अधिक गर्मी किस में लगेगा, 2 पतले पतले रजाई या एक सिंगल मोटा रजाई? रजाई ज्यादा गर्मी देगी। सिंगल रजाई। सर सिंगल मोटर रजाई। 2 पतले पतले, जितना पतले पतले तुम मल्टीपल रजाई यूज कर लो पतले पतले, और एक सिंगल मोटा पतले पतले वाला अधिक गर्मी देगा, तो तुमने रजाई यूज किया ही नहीं है। आई सबका आंसर ढूंढो, सबका आंसर एक ही है, सबका आंसर एक ही है, ध्यान देना। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये रहा एयर। रजाई जब नया होता है तो रजाई थोड़ा फुला हुआ होता है, तो अंदर उसके एयर बहुत से ट्रैप होते हैं, तो एयर इज बैड कंडक्टर। तो अब बताओ, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा और बाहर का टेम्परेचर कम, तो ठंड के दिन में हीट ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू आउटसाइड,
हीट अंदर से बाहर जा रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। और बीच में तुमने क्या यूज कर लिया, रजाई एक नया बना, तो नया वाला रजाई हीट तुम्हारे बॉडी से बाहर जा रहा है और नए रजाई के अंदर एयर ट्रैप्ड है, और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब रजाई पुरानी हो जाती है तो दब के वो क्या होता है, पतला हो जाता है, अंदर का एयर बाहर निकल जाता है। एयर बाहर निकल गया तो रजाई की कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो सीधे आंसर ये था कि नई रजाई की कंडक्टिविटी कम और पुरानी की ज्यादा। ऐसा क्यों, रजाई पुरानी हो गई, अंदर से एयर बाहर निकल गया, तो लो कंडक्टिविटी वाला चीज बाहर निकल गया, तो जो रजाई पतला हो गया, ठीक है, हाई डेंसिटी वाला, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। या दो रजाई यूज किए पतले पतले, तो दो पतले पतले के बीच में क्या आ गया, एयर गैप आ गया, और वो एयर गैप इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट को जाने नहीं दिया, हीट बाहर निकला नहीं, तो हीट अंदर ही तुम्हारे पास रह गया, तो तुम अधिक गर्मी फील करते हो। देखे होगे ठंड के दिन में जो चिड़िया सब है अपने पंख को बिल्कुल फुलाकर बैठती है, देखा है कि देखा है? यस सर। क्या होता है उसका, क्या उसको भी पता है, ये उसको भी पता है, चिड़िया को पता है ये कंडक्शन होता है वहां पर, उसको भी पता है कि फुला लोगे तो बॉडी को, पंख मतलब फुला लिया तो अंदर में एयर आ गया, तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कहीं भी एयर ट्रैप हो गया मतलब वो हीट का बैड कंडक्टर, वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं देगा। इवन तुम जो यूज करते हो ना, एक जो आता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल फ्लास्क, ठीक है, जिसमें गर्म पानी रखते हो, तो गर्म पानी का जो डिवाइस क्या होता है, उसका भी डिवाइस कुछ ऐसा ही होता है। उसका भी डिवाइस क्या होता है, तुम देखोगे तो उसमें दो अलग अलग, जो हम थर्मल फ्लास्क जिसमें हम रखते हैं गर्म पानी, तो उसमें उसका बॉडी कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, ये बना होता है, ये इसका बना होता है, और इस दो अलग अलग बॉडी बीच में एयर भरा होता है। तो वो जो बर्तन होता है वो दो पैरेलल मेटलिक बॉडी का होता है। अब ये एक बर्तन, ये दूसरा ये, और बीच में ये वैक्यूम कर देते हैं, तो वैक्यूम कर दिए, अब बीच में एयर भी नहीं है वैक्यूम में, तो फिर वहां पे हीट कंडक्शन हुआ ही नहीं। तो ये एयर है और एयर को भी बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी काफी कम हो जाती है, तो ये वैल्यू 0.024 से भी काफी कम हो गया। तो बाहर से, तो अंदर तुमने कुछ गर्म चीज रखे तो हीट बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बैड कंडक्टर। तो फाइनली सॉलिड सबसे अधिक कंडक्टिविटी, लिक्विड का कम है, एयर का कम है, और तो वैक्यूम में तो कंडक्शन होगा ही नहीं, कंडक्शन होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सब है ही नहीं होगा। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल किसके, कंडक्शन के। चलो आज इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय।